कोलकाता के इस्कॉन द्वारा आयोजित 54वीं प्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा इस वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रही है। भगवान जगन्नाथ का रथ इस वर्ष से लड़ाकू जेट विमान सुखोई 30 के पहियों पर ताना जाएगा। पिछले 48 वर्षों से रथ की सेवा कर रहे बोइंग 747 विमान के पुराने पहियों का फेयरवेल कर दिया गया है। अब वह मायापुर के इस्कॉन म्यूजियम में रखा जाएगा। इस जेट विमान के पहियों के जरिए विश्व भर में चल रहे युद्ध को एक शांति का संदेश कोलकाता के इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष राधा रमन ने दिया है। जय जगन्नाथ। जैसा हम जानते हैं कि जगन्नाथ रथ में, कलकत्ता के रथ में बोइंग 747 के चक्के लगे थे, जो 48 साल से भगवान की सेवा कर रहे थे। अभी ये पुराने हो गए हैं। हम लोग इसका रिप्लेसमेंट काफ़ी वर्षों से खोज रहे थे, तो फाइनली इस वर्ष हमको सुखोई जो 30 का जो लड़ाकू विमान होता है, उसके 4 चक्के हमने MRF से ख़रीदे और रिप्लेस किया। लेकिन सनातन संस्कृति में हम जानते हैं कि हम लोग हर एक चीज़ का रिस्पेक्ट करते हैं। बोइंग 747 के चक्कों ने काफ़ी दिनों तक सेवा की भगवान को, तो हम लोग इसको आज रिटायरमेंट दे रहे हैं और इसको हम लोग अपने म्यूज़ियम में भी रखेंगे, रथ के म्यूज़ियम में। तो हम जानते हैं कि जो भगवान का रथ है, ये इसमें काफ़ी विशेष चीज़ है। जो ये कैनपी है वो कोलैप्सिबल है, क्योंकि कलकत्ता में हम जानते हैं कि जो ट्राम लाइन है, बहुत सारे वायर्स होते हैं, तो इसको हम लोग नीचे ऊपर कर सकते हैं। तो काफ़ी इनोवेशन किया गया है। इस्कॉन का जो रथ है काफ़ी इनोवेटिव है, क्योंकि शहर के रास्तों में और शहर की स्थिति में सुचारू रूप से वो चल सके, उसकी व्यवस्था की गई। पहली बार नई टेक्नोलॉजी, वेबसाइट और QR कोड के माध्यम से आप सभी को घर बैठे रथ यात्रा की सही लोकेशन और परफेक्ट टाइमिंग की जानकारी उपलब्ध होगी। साथ ही पूरे रथ यात्रा का कार्यक्रम, रथ की साज सज्जा, पूरी जानकारी चलिए सुनते हैं इस्कॉन द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। प्रति বছরের মতো এই বছরও ইসকন আয়োজিত কলকাতা রথযাত্রার সবাইকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে প্রতি বছরের ন্যায়। আমাদের এখানে উপস্থিত রয়েছেন আমাদের ভাইস প্রেসিডেন্ট বোর্ডের মেম্বাররা। আমার নাম অনঙ্গ মোহন দাস, বল্লভ চৈতন্য প্রভু এবং রাধারমণ প্রভু তো আপনারা সবাই চেনেন। তো আপনাদের নিজেদের লোক আছে রাধারমণ প্রভু। তো 54তম রথযাত্রা এবারে আমরা অনুষ্ঠিত করতে চলেছি। 54 রথযাত্রা মহোৎসব, যেটা আমাদের শিল প্রভুপাদ অভয় চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী শিল প্রভুপাদ আজ থেকে 54 বছর আগে এই রথযাত্রা কলকাতায় শুরু করেছিলেন কলকাতাবাসীকে আশীর্বাদ দেওয়ার জন্য। আপনারা জানেন যে এই কল্পের সত্য যুগে ইন্দ্রদ্যুম্ন মহারাজের মাধ্যমে জগন্নাথ, বলদেব, সুভদ্রা এবং সুদর্শনের শুভ আবির্ভাব হয় এবং তৎপশ্চাৎ এই জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা অত্যন্ত বিশেষ। অন্য কোনো ভগবানের মূল বিগ্রহকে নিয়ে বাইরে বের করা হয় না, কিন্তু জগন্নাথ, বলদেব, সুভদ্রা এবং সুদর্শন হচ্ছেন এমনই একজন ব্যক্তিত্ব, এনারা সবাই মূল বিগ্রহ ভগবানের রথে করে বাইরে বেরোয়। এবং সেজন্য শাস্ত্রে বলছে দৌলেছে দৌল গোবিন্দ চাপিয়েছে মধুসূদনা রথের চ বামন দৃষ্টা পুনর্জন্ম না দেখেছে। একবার যদি জগন্নাথকে কেউ রথে দর্শন করেন, তাহলে তার আর পুনর্জন্ম হয় না, অর্থাৎ তাকে আর এই পৃথিবীতে ফিরে আসতে হবে না। তো আপামর জনতা, বিশেষ করে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে এই জগন্নাথ দেবের রথযাত্রা, শালবেগের রথযাত্রা হোক, ইন্দ্রদ্যুম্নের রথযাত্রা হোক, সবাই জগন্নাথকে ভালোবাসে। আপনারা একবার বলুন জয় জগন্নাথ। জয় জগন্নাথ। এবং জগন্নাথ স্বামী হচ্ছেন স্বয়ং নারায়ণ। সেজন্য প্রতি বছর যেভাবে মহাসমারোহে আমাদের অ্যালবার্ট রোড মন্দির থেকে প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ, বলদেব, সুভদ্রা এবং সুদর্শনকে নিয়ে বার হওয়া হয়, ঠিক সেইভাবেই আগামী 27শে জুন রথযাত্রা শুরু এবং উল্টো রথ হচ্ছে 5 তারিখ, জুলাই মাসের 5 তারিখ। তো এই মাঝখানে যা যা অনুষ্ঠান হবে সে সম্পর্কে আমার বন্ধুবর বল্লভ চৈতন্য প্রভু জানাবেন আপনাদেরকে। এবং তৎপশ্চাৎ এবারে বিশেষ বিশেষ কি অনুষ্ঠান হতে চলেছে, রথের কি পরিবর্তন হয়েছে, পান্ডালের কি পরিবর্তন হয়েছে, আমার আরেকজন কলিগ এবং বন্ধুবর রাধারমণ প্রভু আপনাদেরকে সবাইকে জানাবেন। আপনারা সবাই রথে খুব
পরিবার পরিজনকে নিয়ে এসে জগন্নাথের মহাভোগ খিচুড়ি গ্রহণ করবেন। জয় জগন্নাথ। তো যে এবার আমরা বিশেষ পান্ডাল বানাচ্ছি আর বিশেষ আকর্ষণীয়, আপনারা সবাই দেখতে পারবেন। এতদিন ধরে যে পান্ডাল বানানো হচ্ছিল ওটা থেকে খুব না ডিফারেন্ট হবে। আর পুরী মন্দির যেরকম আছে ওই রকম পান্ডাল হচ্ছে, খুব সুন্দর। আর তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা বিশেষ 56 ভোগ আয়োজন করা হয়েছে জগন্নাথজিকে। জগন্নাথজি এবার রথযাত্রা যে রুট আছে ওই রুট যে হচ্ছে ও আলবার্ট রোড থেকে শুরু হয়ে তারপরে ল্যান্সটাউন হয়ে হাজরা হয়ে এই যে তারপর চৌরঙ্গি রোড হয়ে পার্ক স্ট্রিটে রথ আসবে। সেটা যখন আনন্দ মন্দির বলেন 27 জুনে, তো এটা সোজা রথ। আর উল্টো রথ টিআইএ পার্ক স্ট্রিট গ্রাউন্ড থেকে শুরু হয়ে ধরমতলা হয়ে তারপরে সিআইটি মৌলালি হয়ে আর থিয়েটার রোড হয়ে মিন্টো পার্ক আলবার্ট রোড স্থিত মন্দিরে ভগবান পৌঁছে যাবেন। তো বিভিন্ন জায়গায় এবার কমপক্ষে 10 জায়গায় 56 ভোগ আয়োজন। 56 ভোগ আমরা বলি কিন্তু মানে 100 থেকে বেশি 108 আইটেম থেকে বেশি ভগবানকে ভোগ লাগানো হয়। কেননা জগন্নাথ আছেন ভোগের ঠাকুর। জগন্নাথকে যদি সন্তুষ্ট করা হয় করতে হবে, আমাদেরকে যদি ভোগ লাগিয়ে দিই, ভগবানকে খাইয়ে দিই, ভগবান খুশি হয়ে যাবে। আর মেলা গ্রাউন্ডে আমরা খুব সুন্দর সুন্দর আয়োজন করেছি। বিগ্রহ বিনোদন সেবা সে জগন্নাথের মন্দিরে নাট মন্দিরে আমরা প্রত্যেক বছর, এই বছর আমরা অনেক শিল্পীরা নৃত্য করবেন। শ্রীমতী ডোনা গাঙ্গুলি তিনার ট্রুপ আছে, তারপরে অনেক প্রতিভাশালী যারা যারা অ্যাওয়ার্ড উইনার, পদ্ম অ্যাওয়ার্ড উইনার তারা আসবে। কুচিপুড়ি, ভরতনাট্যম, ওড়িশি সুন্দর নৃত্য হবে। তার সঙ্গে সঙ্গে কালচারাল স্টেজ প্রোগ্রাম আছে, ওখানে ডান্স, ড্রামা, কীর্তন সব ডিভোশনাল জগন্নাথকে নিয়ে সুন্দর সুন্দর প্রোগ্রাম হয়। তার সঙ্গে আমরা প্রসাদ বিতরণ সেবা প্রভুপাদ চাইতেন, প্রভুপাদ বলেছিলেন কি 10 কিলোমিটার রেডিয়াসকে কেউ যেন না খেয়ে থাকে না। সেই জন্য প্রত্যেক ইস্কন মন্দিরে প্রসাদ বিতরণ হয়। তার সঙ্গে সঙ্গে আমরা এই মেলা গ্রাউন্ডে গুন্ডিচা মন্দিরে বলি কেননা ভগবান সত্যি জগন্নাথ ওখানে এই পার্ক স্ট্রিট গ্রাউন্ডে থাকবে আর ওখানে গুন্ডিচায় পরিণত হয়ে যাবে জায়গা। সেই জন্য বিশেষ জগন্নাথ থাকবে, সবার জন্য প্রসাদ থাকবে। তারপরে সবার জন্য কেন খিচুড়ি ভোগ যে আছে খুব বিশেষ, ভগবানের ভোগ মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে খিচুড়ি ভোগ, সেই জন্য খিচুড়ি ভোগ আছে। তারপরে চিলড্রেন্স প্রোগ্রাম আছে, তারপরে ইউথদের প্রোগ্রাম আছে, তারপরে কংগ্রেগেশনদের প্রোগ্রাম আছে। বিভিন্ন প্রোগ্রাম হয় যেখানে সবাই সম্মিলিত হতে পারে। আর জগন্নাথজি কাস্ট কালার কিছু দেখে না, সেই জন্য এই ঠাকুর রাস্তায় বেরিয়ে আসেন জগন্নাথজি বিশেষ কৃপা করার জন্য। কেউ হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, শিখ হোক, ইসাই হোক, যে কেউ ভগবানের দর্শন করে নিজের জীবনকে সার্থক করতে পারে। তো আমাদের এই যে উৎসব হচ্ছে রথযাত্রা হচ্ছে প্রেমের উৎসব। কেন জগন্নাথ প্রেমের ঠাকুর, সে প্রেমের ঠাকুর প্রেম বিলিয়ে দেওয়ার জন্য উনি এসছেন। মহাপ্রভু তিনি রথকে নিয়ে যেতেন রাধারানী ভাবে। তো আমরা এই যে মানে বৃন্দাবনে নিয়ে যাচ্ছি ভগবানকে, এটা আমাদের এই উৎসবের মূল হচ্ছে। জয় জগন্নাথ, হরে কৃষ্ণ। जय जगन्नाथ। तो 27 जून को रथ यात्रा है। पूरे विश्व में रथ यात्रा पालन आज होता है और भारत से बाहर जिसने रथ यात्रा को लेके गए वो और कोई नहीं, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य शिला प्रभुपाद हैं। हम जानते हैं कि पहले विदेशों में रथ यात्रा नहीं होती थी,
लेकिन एक 70 वर्षीय बंगाल से एक सन्यासी 1965 में अमेरिका गए और उन्होंने 1965 में इस्कॉन की स्थापना की और 1967 में पहली रथ यात्रा भारत की भूमि से बाहर हुई। और आज पूरे विश्व में प्राय 150 से भी अधिक देशों में इस्कॉन रथ यात्रा आयोजित करता है, 4000 से भी ज़्यादा जगहों और स्थानों में। और आज हम देख रहे हैं कोई भी देश का, अब कलकत्ता रथ यात्रा में ये जो है इस कलकत्ता शहर वो इस्कॉन के लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद कलकत्ता में ही उनका जन्म हुआ था। और प्रभुपाद जब वो छोटे थे 5 वर्ष से ही उन्होंने रथ यात्रा शुरू की थी। आज कोलकाता रथ यात्रा 54th रथ यात्रा है और पूरी रथ यात्रा के बाद में यह विश्व का सबसे पॉपुलर रथ यात्रा बन गया है। यहाँ पर कई देशों से भक्त आते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि इस साल हम लोग ने जगन्नाथ भगवान का जो रथ है उसके चक्कों को चेंज किया। तो इससे पहले 48 वर्ष से उसमें बोइंग 747 के चक्के लगे हुए थे, उसको आज हम लोग ने चेंज करके सुखोई टायर्स लगाए हैं। जो सुखोई टायर 30 सुखोई विमान है, सबसे उन्नत लड़ाकू विमान, उसके ब्रांड न्यू टायर हमने जगन्नाथ रथ में लगाए हैं। तो बहुत लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि विश्व में तो ऑलरेडी लड़ाई की स्थिति है, तो ये अचानक इस्कॉन वाले क्यों आप लोग सुखोई के टायर भगवान के चक्के में लगा दिए। इवन MRF कंपनी, जिससे जब हमने उनसे मांगा कि हमें ये सुखोई का टायर चाहिए, तो वो भी प्रश्न कर रहे थे कि भैया आप लोग को क्यों चाहिए। लेकिन जब उन्होंने वेरीफाई किया तो उन्होंने हमें चक्के दिए और हमने चेंज किया। तो बहुत लोग पूछ सकते हैं कि सुखोई चक्का क्यों लगाया गया, तो ये तो भगवान की इच्छा है कि उन्होंने सुखोई चक्कों को ग्रहण किया। लेकिन हम देखते हैं कि कलकत्ता रथ यात्रा में देश विदेश के भक्त आते हैं। पिछले वर्ष जब जगन्नाथ भगवान के रथ के सामने चाइना से जो भक्त थे, अमेरिका से जो भक्त थे, रशिया से जो भक्त थे, यूक्रेन के भक्त थे, हम जानते हैं कि रशिया यूक्रेन में कितना भयंकर युद्ध चल रहा है 3 वर्षों से, और एक दूसरे देश के नागरिक मारे जा रहे हैं। और एक कटुता तो हो ही जाते हैं। यूक्रेनियन सोचते हैं कि रशियन लोग हमारे इस परिवार के लोगों को मार दिया। हमारे इस्कॉन का जो एक फूड फॉर लाइफ हम रिलीफ करते हैं, उनके भी भक्त यूक्रेन में मारे गए। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि मतलब लोगों के बीच में कि कटुता उत्पन्न हो सकती है। लेकिन जब देश विदेश के लोग जगन्नाथ के सामने आते हैं तो अपनी सारी शत्रुता को भूलकर हाथ उठाकर जय जगन्नाथ बोलते हैं। तो जगन्नाथ का यही अर्थ है कि वो जगत के नाथ हैं। बहुत बार लोग हमने देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन एक बहुत बड़ी संस्था है जो न्यूयॉर्क में है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के अंदर में क्या होता है, बाहर में तो हम देखते हैं कि सभी देशों का झंडा लहरा रहा है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के अंदर में जब जाते हैं तो देखते हैं कि एक देश दूसरे देश के साथ कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई कर रहा है। लेकिन आप मायापुर में आइए, इस्कॉन मायापुर में आइए। मायापुर कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर पर है। वहाँ पर भी 150 देशों, मैं कहूँगा कि 180 देशों के लोग जनवरी फरवरी में एक साथ आते हैं, लेकिन कोई लड़ाई नहीं करता है। सब क्या करते हैं, सब दोनों हाथ को उठाकर जय जगन्नाथ कहते हैं। तो सही रूप में अगर यूनाइटेड नेशन है तो वो इस्कॉन मायापुर में आपको मिलेगा। तो रथ यात्रा का इस वर्ष का हमारा यही थीम है। सभी लोग हम देख रहे हैं कि विश्व युद्ध होने के कगार पर है, तो हम भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं और कलकत्ता रथ यात्रा के माध्यम से, इस्कॉन मायापुर के एग्जाम्पल से हम विश्व को बताना चाहते हैं कि अगर हमको सही यूनाइटेड नेशन बनाना है तो भगवान को केंद्रित करके हमको शांति का संदेश देना चाहिए। और ये जगन्नाथ रथ यात्रा है जो ऐसी रथ यात्रा है जो भगवान खुद अपने मंदिर से निकलते हैं और वो ना तो जात देखते हैं, ना तो पात देखते हैं, ना तो नेशनैलिटी देखते हैं, आप किस देश को है, वो किस रंग के हो, कुछ नहीं देखते हैं, बस निकलते हैं तो कृपा देते हैं। तो आइए हम सभी लोग इस्कॉन कोलकाता की रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करें। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी जानते हैं कि मैडम हमारे कलकत्ता की रथ यात्रा को उद्घाटन करती हैं, लेकिन इस बार दीघा में जगन्नाथ की कृपा वर्षित हुई
और वहाँ पर बहुत बड़ी प्रथम रथ यात्रा होने जा रही है। तो उस रथ यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री वहाँ रहेंगी, मैं भी वहाँ पर रहूँगा 27 तारीख को, और वहाँ पर भी लाखों लोगों की दर्शकों की और भक्तों के आने की उम्मीद है। जय जगन्नाथ। हाँ अच्छा, और एक और माननीय मुख्यमंत्री कलकत्ता रथ यात्रा में 3 जुलाई को आएंगी। हमें पता है कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड में महासी बाड़ी होता है, जहाँ पर लाखों लोग आते हैं। लगभग पिछले वर्ष 20 लाख लोग 9 दिन के फेस्टिवल कोलकाता रथ यात्रा में पार्टिसिपेट किए। बहुत सारे लोग ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री 3 तारीख को शाम के वक्त ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आएंगी, भगवान का आरती करेंगे। और क्या बोले, 3 जुलाई, हाँ 3 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री आएंगी। और हमें पता है कि हम ये जो बोइंग 747 का जो चक्का था वो 48 वर्ष तक भगवान के रथ में सेवा दिया। भारतीय संस्कृति एक ही संस्कृति है, हिंदी में बोल रहा हूँ, हिंदी। भारतीय संस्कृति एक ही संस्कृति है जहाँ पर झाड़ू, चप्पल और हर एक वस्तु का रिस्पेक्ट किया जाता है। तो कोई पूछ सकता है कि अरे टायर तो एक निर्जीव चीज़ है, लेकिन हमारे स्क्रिप्चर बताते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुछ भी निर्जीव नहीं होता है। इवन जो वहाँ पर मिट्टी का जो कण होता है वो भी आत्मा से बना रहता है। तो उसी भाव को रखते हुए बोइंग 747 को आज हम लोग रिस्पेक्टफुल उसको रिटायरमेंट देंगे। वो आज वानप्रस्थ आश्रम में जाएगा, 48 वर्ष में 2 वर्ष पहले ही जाएगा। और इस्कॉन न्यू टाउन में हमारा बहुत बड़ा मंदिर बनेगा, वहाँ पर हम लोग म्यूज़ियम बनाएंगे, जहाँ पर जो भी ये इसको, क्योंकि इस्कॉन का पहला रथ है, तो उसके जो भी पुर्जे हैं जो रिटायर होंगे वहाँ पर हम लोग म्यूज़ियम में भी रखेंगे। जय जगन्नाथ। रथ यात्रा के अद्भुत संगम के लिए न्यूज़ ज्ञान दर्शन 9 की ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।